Hello, everybody, and Assalamu alaikum all. I hope everybody is doing great. This is Anjum Nawab here, live from Calgary, Canada. And again, I have a very, very special guest with me today here on my business page with me. Here's Farheen, all the way from California, US. If I'm not wrong, Farheen, aap kahan se ho? I'm sorry, I didn't ask you that. You're from I'm US? from New York, New York. New York. Okay, I'm sorry about that. So this is Farheen with us from New York, USA. Assalamu alaikum, Farheen. वालेकुम कैसे हो आप? अस्सलाम। How are you doing today? या I'm good, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? ठीक है? Alhamdulillah, I'm doing good, Farheen. So, Farheen, first and foremost, thank you so much for accepting my invite in such a short duration. बहुत कम time दिया है मैंने आपको. Like, I just requested for a live, and Alhamdulillah, you're here. And I know आप busy हो. You're a mom of young kids. You are a coach. So, I'm very, very grateful for that. And moving forward, Farheen, I would like to congratulate you for your, the title which you have achieved. आप हमारे business community के एक coach हो अब. You're a strategist, a leader of our community, and it's kind of inspiration to all of us क्योंकि we all have the same goal, and आप वहाँ पर हो. So many many congratulations for that, and I hope of our success. देखें. So Farheen claimed this title recently, Alhamdulillah, and today we're going to talk about her journey. कि आप जो है from the time you started this business, आपने webinar देखा, just like all the others in the community whom we start with. You saw the webinar, you were skeptical, you overcome your fears, you become a business member, you become a mentor, and you acclaim the title as a coach. It's a privilege of our community, and आप definitely हम सब के लिए एक inspiration हो. So we're going to talk about your journey and everything. And before we get started, of course, आप अपना introduction मेरे viewers को दे. Something about Farheen कि आप कहाँ पर हो. Of course, we know that you're from New York now, and आप what's your home country. Something about yourself. If you were doing a job before you got started with this business, and what were your struggles or what were your pain points which led you to explore the online world. जी. सो थैंक यू सो मच फॉर लाइक मेरे लिए इतना अच्छा बोलने के लिए। डेफिनेटली मैं भी किसी से इंस्पायर होके आई थी और आज मैं किसी की इंस्पिरेशन बन गई हूँ। दैट्स लाइक मुझे बहुत ये ब्लेसिंग फील होती है जब मेरे लिए कोई ये वर्ड्स बोलता है। और सबसे अच्छा मुझे तब लगता है कि शायद मैं ऑफलाइन जॉब करके इतना ना अचीव कर सकती जितना मैंने ये ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करके अचीव किया है। डेफिनेटली जॉब लाइफ से सभी जो हैं वो बहुत ज्यादा एक टफ टाइम फेस कर रहे होते हैं, जो मैंने भी किया है। बल्कि मैंने तो ऑफलाइन बिजनेस भी किया है, सिर्फ जॉब नहीं किया है। Okay. सो सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी दैट आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। बाय प्रोफेशन आई वाज टीचर। आई डिड आई डिड एमएससी फिजिक्स। देन फ्रॉम हियर आई डिड लाइक इन यूएसए मैंने एमबीए मार्केटिंग की है। मैंने 3 साल जॉब की है इन द वेयर हाउस एज ए अकाउंटेंट। एंड देन मैंने अपना ऑफलाइन ग्रोसरी स्टोर बिजनेस भी रन किया है। Wow. That time when I quit my job and I started my grocery store business, उस टाइम पे मैंने एज ए साइड हसल इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। बिकॉज मैंने जब से होश संभाला है, मैंने जब से अपनी डिग्री ली थी उसके बाद से मैंने अर्निंग स्टार्ट किया। तो मुझे एक अंदर से इंस्टिगेट करती है चीज, वो ये कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। इट्स नॉट ओनली कि मेरा रीजन मेरे बच्चे हैं, नो नॉट एट ऑल। मेरे बच्चे हैं, डेफिनेटली वो सभी का रीजन है मेरे ख्याल से। सो मैं कोई कॉमन वो रीजन नहीं बोलूंगी। मेरा रीजन ये है कि मुझे खुद से अंदर से एक चीज इंस्टिगेट करती है दैट यस फरीन यू हैव टू अर्न। चाहे वो मैं घर से करूं, चाहे वो मैं किसी तरीके से भी अरेंज करके बाहर चली जाऊं, जो कि मैं अभी भी करती हूँ। मैं उस चीज में स्टॉप नहीं हुई हूँ। सो वो चीज है जिसकी वजह से मैंने ये बिजनेस भी स्टार्ट किया था। बट उस टाइम मुझे एक ये फियर था। एक तो ऑनलाइन था, ठीक है, स्केप्टिकल एंड ऑल, वो नॉर्मल है, होना चाहिए अंजुम। बिकॉज इफ यू आर स्केप्टिकल देन यू विल एक्सप्लोर। आप बिल्कुल, स्केप्टिकल नहीं होगे, आप एक्सप्लोर नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आप स्कैमर्स के हाथ में फंस जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल, सो ये आपका एक्सप्लोर होना मुझे अच्छी बात लगता है। और मैं जब इस बिजनेस में आई तो मेरा एक ही पॉइंट था कि मैं इसको ज्यादा टाइम नहीं दे सकूंगी, क्योंकि ऑन द अदर हैंड मैं 9 to 9 ग्रोसरी स्टोर को रन कर रही थी। हुँ, डेफिनेटली वो चीज जब मैंने 9 to 9 उसको भी रन किया, तो ऑन द अदर हैंड मैं इसको मैनेज कर पाई थी उस टाइम पे। सो ओके, मेरा वो फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो पार्ट था, वो इस बिजनेस ने मुझे एक मतलब एक पोटेंशियल दिखाया, एक होप दी कि यस मैं ये बिजनेस आगे मजीद कर सकती हूँ। और इस बिजनेस में जैसे ही मुझे पोटेंशियल नजर आया और मैंने देखा कि मैं ऑफलाइन जो काम कर रही हूँ वो बहुत ज्यादा हेक्टिक है, मेरी ओके, लाइफ एक किस्म की खत्म हो गई थी। फरीन के पास इतना टाइम नहीं था कि फरीन अपना मुंह भी धो ले। सो मेरे पास तो अपने लिए एक
बच्चों को तो ठीक है, अपने लिए भाई कोई टाइम नहीं होता था, 9 to 9 इज टू मच, एंड एवरी मुझे तो ऑफ भी नहीं मिलता था। जी, जी। ये बहुत मुश्किल टाइम था वो। मैंने जी, फिर जब इस बिज़नेस ने मुझे एक रिजल्ट्स देना स्टार्ट किए, तो आई डिस्कस विद माय हस्बैंड, क्योंकि हमें ऑफलाइन बिज़नेस से इतना अच्छा अर्निंग नहीं हो रहा था। हुँ, और इसमें भी, इस बिज़नेस में भी मुझे 6-7 महीने गुज़र चुके थे, तो वहाँ से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हो रही थी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि डायरेक्टली मेरी 5 फिगर इनकम स्टार्ट हो गई थी, बट एक एक पोटेंशियल नज़र आ गया था कि येस आई कैन अचीव दैट गोल। हुँ, इस बिज़नेस से आपको पता चल जाता है कि आप कर सकते हो या नहीं। तो वो चीज़ जब मुझे फ़ील हुई ना, तो मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया दैट वी हैव टू क्विट एवरीथिंग, लाइक आई हैव टू क्विट एवरीथिंग, क्योंकि हस्बैंड ज़ाहिर-सी बात है वो कहाँ जॉब क्विट, उन्होंने तो ग्रोसरी स्टोर ओपन करने के बाद भी जॉब क्विट नहीं की थी अपनी। जी, वो जी। सीवीएस पे मैनेजर है। सो अच्छा। मैंने अपने से डिस्कस किया, मैंने कहा मैं घर बैठ के इस पे फ़ोकस करूँगी, तो आई थिंक इसमें पोटेंशियल है कि मैं हर चीज़ जो भी हमने इन्वेस्ट किया हम रिकवर कर सकते हैं। हुँ, हुँ। उन्होंने मेरा इस चीज़ में साथ दिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह घर से बैठ के इसको रन कर रही हूँ। मेरा काम ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मैं लोगों को हेल्प आउट करती हूँ, उनको बताती हूँ, क्योंकि बहुत सी मॉम्स हैं वो कहती है हमें एक्सपीरियंस नहीं है, हमें कुछ आता नहीं है, हमने कंप्यूटर कभी यूज़ नहीं किया, इवन दो दे आर इन यूएसए, बट द थिंग इज़ कि इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, यू डोंट नीड एनीथिंग फॉर दिस। मेरे पास एमबीए मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, एंड बिलीव मी वो मार्केटिंग का एक्सपीरियंस इधर मुझे कहीं यूज़ नहीं हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड दैट। जी। में वो जो मैंने लर्निंग की है, वो ऐसे ही लर्निंग की है जो आपको ए टू ज़ेड सब कुछ बताती है। हुँ, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी डिफ़िकल्ट है ही नहीं कि हमने कोई टारगेट्स अचीव करना है या हमने कोई ऐसी चीज़ें लर्न करनी है जिसके थ्रू हम इस बिज़नेस में एंटर हो सकते हैं, नो। हुँ, एवरीथिंग यू विल गेट हुँ, आफ्टर यू एंटर इंटो दिस बिज़नेस। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और इसमें जो गाइडेंस का पार्ट है, देखिए हमने जो ऑफलाइन बिज़नेसेस होते हैं, अगर आपके पास होमवर्क अच्छा नहीं है, आपके पास गाइडेंस अच्छी नहीं है, आप उसमें सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ, क्योंकि हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है। इस हुँ, बिज़नेस में मेरे आगे बढ़ने की वजह मेरी गाइडेंस थी, मेरी मेंटर थी, मेरी कोच थी और मेरी ट्रेनिंग थी। दीज़ 3 थिंग्स, ये 3 चीज़ें थी तो मैं इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकी हूँ। इसमें ये नहीं है कि कोई एंटर हुआ है और आपको कोई पूछने वाला नहीं है, नो। आप अपने आप को नहीं पूछोगे वो अलग बात है, बट आपको आपकी मेंटर, कोच और ट्रेनिंग ऑल द टाइम आपके साथ रहेंगे। सो मुझे इस बिज़नेस में आगे पहुँचाने की रीज़न्स ये रही हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि आप अपने बच्चों के साथ, अभी भी मेरे बैग पे मैंने बैकग्राउंड थोड़ा ब्लर किया हुआ है क्योंकि आज मेरा रूम साफ नहीं है, सॉरी गाइज़। तो इसलिए मैंने पीछे से तो मेरे बच्चे पीछे हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं। उस उसी इसी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू मुझे अर्निंग भी हो रही है और मेरे बच्चे भी इग्नोर नहीं हो रहे। मुझे और क्या चाहिए? लाइक बिल्कुल, मैंने ऑफलाइन काम करके देख लिया ना, लाइक आई एम लवर ऑफ, लाइक मुझे अच्छा लगता है सुबह तैयार होके जाना, बट नॉट ऑन द डेली बेसिस। उसमें मेरी अगर घर की लॉन्ड्री, कुकिंग, मेरा मी टाइम, मेरे बच्चों का टाइम डिस्टर्ब हो रहा है, तो डेफिनिटली वो चीज़ यस, मुझे एक एम्बैरस भी करती है और मुझे बुरा भी फील होता है। बट द थिंग इज़, इस बिज़नेस में आने के बाद मेरी कोई चीज़, मेरी डॉक्टर 1 साल मैंने अपने बच्चों की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट्स मिस की हैं। उनकी जो वैक्सीनेशन होती थी, वो भी मैं बहुत मुश्किल से अपॉइंटमेंट लेके, और बाकी जो उनकी चेकअप वगैरह होते थे, डेंटिस्ट के पास जाना, सब मैं मिस कर रही थी। क्योंकि मैं मंडे टू फ्राइडे भी काम कर रही हूँ, सैटरडे संडे तो डेफिनिटली हम नहीं जा सकते। और जी, हस्बैंड जो है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है, तो मुझे ही करना था एज़ ए लाइक मदर। तो मुझे लग रहा था कि मेरे बच्चे बहुत इग्नोर हो रहे हैं। जी, फिर ऑन द अदर हैंड मुझे अर्निंग भी करनी थी, तो फिर इसलिए मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ किया। आपको लगता है स्टार्ट में अंजुम कि आप नहीं करोगे, आप सोशल मीडिया पर्सन नहीं हो, आप लोग सोशल मीडिया पे आते हो, हुँ, आपको फेस शो करना पड़ता है, हम टॉकेटिव नहीं है, हमें कम्युनिकेशन नहीं करना आती, हमें इंग्लिश नहीं आती। लाइक दीज़ ऑल आर लेम एक्सक्यूज़ेज़, अगर मैं बोलूँ तो मुझे ये लेम एक्सक्यूज़ेज़ लगते हैं। आपको जी, नहीं आता तो हमने तो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है आपकी कि हम आपको जी, सब सिखाएँगे। आपको हम आगे से होके कह रहे हैं कि यस वी आर टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे आप करें नहीं, अपनी कंसिस्टेंसी शो ना करें तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मिलेंगे, अ, बिल्कुल। सवाल आता है, अगर हम इस बिजनेस में आ गए तो हमें अर्निंग होगी कि नहीं, कब होगी, कितनी होगी? तो हुँ, उसका मतलब ये है कि अगर आप कंसिस्टेंसी शो करेंगे, जो इस बिजनेस में लेके 1-2 कमिटमेंट्स हैं वो पूरी जी, करें, डेफिनिटली 100% इसमें अर्निंग है। मुझे हुई है तो आपको
क्यों नहीं होगी? यस ऑफ कोर्स फन, क्योंकि ये तो है प्रूवन स्ट्रक्चर, और जो हमारे नंबर्स दिखाते हैं, राइट, द नंबर्स डोंट लाई, जो नंबर्स है अपनी कम्युनिटी के, मतलब ड्रास्टिकली जिस तरह से बढ़ रही है, आई थिंक इट्स अ प्रूफ कि ये बिजनेस चल रहा है, इट्स वर्किंग फॉर एवरीबॉडी। तो नेचुरली आपको सारे रिसोर्सेज है, आपका सपोर्ट है, आई मीन मेंटरशिप सपोर्ट है, कम्युनिटी का सपोर्ट है, तो आप अपनी कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, अपना जो क्या बोलते हैं, अपनी एफर्ट लगाएंगे, तो डेफिनेटली जो है आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। एंड व्हेन यू सी द रिजल्ट्स, यू आर श्योर कि आप भी वो रिजल्ट्स को कॉन्क्वेर कर सकते हो। एंड मुझे आपकी एक बात अच्छी लगी फरीन की, जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी है, लाइक वी लेडीज, आई थिंक आई वुड से कि मैं ऐसा कभी नहीं सोचती थी बिफोर प्रायर टू ज्वाइनिंग दिस बिजनेस, क्योंकि हमेशा से स्टे होम मॉम रहे हैं एंड हस्बैंड पे ही डिपेंड होते आए, लाइक लाइफ जस्ट वेंट ऑन कि बस बच्चों की टेक केयर करो, एक डिवोटेड मॉम रहो, एंड अल्हम्दुलिल्लाह सब करते हैं, सब अच्छे से, वी आर हैप्पी विद दैट, कोई ऐसी शिकायत नहीं है, यू आर हैप्पी गिविंग आवर टाइम फॉर आवर किड्स। पर उसके साथ साथ व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस एंड इसमें से रेवेन्यू आने लगा, तो आई फेल्ट कि आई शुड हैव स्टार्टेड दिस लॉन्ग बैक, कि कुछ ना कुछ हमें भी करना है एंड अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है, एंड इट फील्स रियली गुड कि आपकी तरफ से भी कुछ इनकम आ रही है एंड यू आर slowly slowly getting financially independent, right? So एक that's मिनट, जी जी सॉरी, no आप problem कंटिन्यू करें। जी। एक मिनट में वो मेरा बेटी गिर गया। यस 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 So यस। this is it guys, ki you do this business along with your kids, take care of them, uh, gain financial independency, gain personal growth and development. So yeah. से हाय एवरीवन, ये भी मेरे साथ 8 महीने से इस बिजनेस को कर रहा है, क्योंकि जी मैंने जब पिछली बार इनको देखा एकदम से, आई थिंक शी वाज अ न्यू बॉर्न जब हमारी लास्ट टाइम। जी हिज नेम इज वली। या वली, माशाल्लाह। हे मेरे वली। लाइव सेशंस में ये रहता ही है। जी। So तो Farheen, हाँ, let's yeah. या आप पूछें जी, क्वेश्चन का। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब आप ये बिजनेस स्टार्ट किए थे, राइट, लाइक स्ट्रगल्स इस बिजनेस के हवाले से, लाइक व्हेन यू वर सेटिंग अप द बिजनेस, जैसे हमने कहा कि हम सोशल मीडिया पर्सन नहीं है, वे क्या आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया, हाउ वर यू बिफोर, लाइक द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस, लाइक पीपल जैसे जज करते हैं कि मैंने तो कभी सोशल मीडिया में कोई पोस्ट ही नहीं किया है, कोई किसी तरह की मैं एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हूँ, हाउ कैन आई डू दिस बिजनेस, बिकॉज इट इज अ डिजिटल मार्केटिंग, वी मेक यूज ऑफ दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू जनरेट रेवेन्यू, राइट? तो इसका एक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई वुड से फेस ऑफ अ बिजनेस कि हम मीडिया पे जो है अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं एंड वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी सबको प्रोवाइड करते हैं। तो व्हेन यू सॉ दिस, क्या हाउ वाज योर रिएक्शन? ऑफ कोर्स अभी आप तो प्रो हो गए हो, आप एक्सपर्ट हो गए हो, बट क्या आपने कोई चैलेंजेस फेस की जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, एंड अगर आपने किया तो उसको कैसे आपने कॉन्क्वेयर किया, लाइक थोड़ा सा डर, थोड़ा सा लाइक नर्वसनेस आपने एक्सपीरियंस किया इस बिजनेस को लेकर जब स्टार्टअप हो रहा था न्यूबी डेज में? सोशल मीडिया की बात करूं तो मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव जरूर थी, पर पोस्टिंग और गो लाइव्स और इस तरह किसी चीज में भी इन्वॉल्व नहीं थी कि मुझे ना, स्क्रोलिंग में बहुत एक्टिव थी। तो दैट्स हाउ मैं इस बिजनेस में भी इसीलिए आई, क्योंकि मैं स्क्रोल ही कर रही थी। और हम यूजुअली मदर्स यही करती हैं, जब टाइम मिलता है या यूट्यूब पे ड्रामा देख लेते हैं या फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं। सो डेफिनेटली मुझे सोशल मीडिया पे लर्निंग का बहुत टाइम नहीं लगा। उसकी रीजन ये थी कि जो हमें टूल्स और एप्स प्रोवाइड की जाती हैं, उसमें सब कुछ इतना रेडीमेड होता है कि हमें कुछ इतना करना नहीं पड़ता है। डेफिनेटली आप अगर हमारी पोस्ट वगैरह देखते हैं तो थोड़ा सा होता है यार इसने ये कैसे बनाया होगा, तो दैट वी हैव, हमें हमें प्रोवाइड की जाती हैं ये चीजें, जिससे हमारा काम बहुत बहुत ईजी हो जाता है। कंटेंट का होता है तो मैंने एक चीज सीखी है कि आप जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा पैराग्राफ लिखो। आई रिमेम्बर कि जब मुझे लिखना पड़ता था कंटेंट के लिए कुछ, तो मैंने एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया था, अपना नाम, अपना वाई। और आज मुझे इस बिजनेस में अगर 2 साल हो गया, मैं 3-4 पैराग्राफ लिखती जाती हूँ। बिलीव में मुझे समझ नहीं आती कि मेरे दिमाग में वर्ड्स कहाँ से आते हैं। सो वो मैंने लर्न किया है। मैं बिल्कुल भी अगर कोई इस बिजनेस में आता है उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि वो डायरेक्टली इतना ज्यादा अपनी सोशल मीडिया के ऊपर जो भी हमारे काम है करने वाले, वो एकदम से करें। टाइम लगता है, हमें भी टाइम लगा है, हमने भी। और इसमें कोई इतनी जल्दी नहीं है कि आपने 1 मंथ में या 2 मंथ में सीख लेना है। आपकी ट्रेनिंग फॉर एवर आपके साथ है, आप थोड़ा थोड़ा करके। और स्ट्रगल मुझे थोड़ा सा ये होता था कि मैंने एक टाइम रखा हुआ था पोस्टिंग के लिए, और इवन आप अपनी जो भी आप सोशल मीडिया पे काम करते हो, आप स्केजुअल करके पूरे वीक का भी काम आप कर सकते हो, स्केजुअल कर सकते हो।
तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल ये था क्योंकि उस वक्त मैं 9 to 9 कस्टमर सर्विस वाली जॉब कर रही थी, तो इन केस मुझे किसी लीड को रिस्पॉन्स करना था या कुछ, तो वो जी मेरे लिए था। लेकिन वहां पे भी एक फ्लेक्सिबिलिटी थी कि यू कैन स्केड्यूल योर ओन। तो फिर मुझे होता था कि अच्छा यार, मैं इस टाइम से इस टाइम तक, मुझे पता था कि मेरी कस्टमर की थोड़ा सा आने का टाइम, या मुझे कोई हेल्प के लिए आ जाता था स्टोर के ऊपर, तो उन टाइमिंग्स में मैं अपने बिजनेस की जो भी चीजें होती थी, मीटिंग्स होती थी या फिर मेरी लीड्स को रिस्पॉन्स करना होता था, या सिस्टम में कोई चीज अपडेट करनी होती थी, या किसी न्यूबी की हेल्प करनी होती थी, तो मैं उस टाइम पे उसको मैनेज कर लेती थी। तो मेरी ना ऑफलाइन बिजनेस इससे डिस्टर्ब हुआ था, ना ये बिजनेस मेरे ऑफलाइन बिजनेस की वजह से डिस्टर्ब हुआ था। तो स्ट्रगल नहीं मैंने फेस की इस बिजनेस में कोई। मुझे इस बिजनेस में एक रीजन मिली, मेरी हॉबी बन गई है ट्रेनिंग देखना, मेरी हॉबी है। जब तक मैं इस बिजनेस के बारे में किसी से बात ना करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। दिस इज द फर्स्ट ट्रिप जो पाकिस्तान में, एवरी अदर ईयर पाकिस्तान जाती हूँ, ये फर्स्ट ट्रिप था जब मैं कह रही थी मैं वापस कब जाऊंगी, मैं कब अपनी मीटिंग्स में जाऊंगी, क्योंकि वो वेकेशन पीरियड होता है। आप जितना भी, अब मैं वहां पे भी इसको टाइम दे रही थी, बट उतना नहीं जितना मैं यहाँ पे देती हूँ। वो मेरा वेकेशन पीरियड था, और इन द वेकेशन पीरियड इवन मेरा अर्निंग का और मेरा जो बिजनेस का कोई भी स्टेटस जो है वो ऑफ नहीं हुआ, ये ऑन रहा है, कोई पॉजेज नहीं आए इसमें, मेरी सब चीजें सेम ही रही हैं। सो मुझे ऐसा कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं फेस करना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इजी ट्रेनिंग थी, कोच और मेंटोर का साथ था, तो मैंने बहुत इजीली इसको लर्न किया। सो अकॉर्डिंग टू मी मेरे लिए नहीं था। जी, आई थिंक इवन अगर से रहा भी ना, लाइक बिकॉज़ वी सी मेनी स्टे होम मॉम्स जो कि बहुत शाय है या फिर सोशल मीडिया एक्टिव नहीं है। वी हैव ऑल द रिसोर्सेज एंड वी हैव ऑल द सपोर्ट कि आप है ना अपना टाइम लो, लुक अराउंड द कम्युनिटी, इंस्पिरेशन लो एंड देन स्लोली स्लोली आपका जो है प्रोग्रेस ज़रूर आता जाएगा, लाइक अकॉर्डिंग टू दी जो हम पेज क्रिएट करवाते हैं इस बिजनेस में, उसमें वो आपका प्राइवेट होता है। तो इट इज लाइक जो करना है, इट्स लाइक योर होम, जो करना है आपने, जो लगाना है। बट जाहिर बात है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो अपनी एक लिमिट में रह के, जैसे हम एज ए मुस्लिम, जैसे मैं हूँ, मैं हिजाब में मोस्टली आती हूँ क्योंकि वो मेरी पर्सनैलिटी है। अगर आप हिजाब लेते हैं, आप हिजाब में आओ, जो आपकी पर्सनैलिटी है वही शो करो। अगर आप हिजाब नहीं लेते हो, नॉर्मल रूटीन में ऐसे हो, तो आप ऐसे आओ। अगर आप नकाब करते हो, नॉर्मल रूटीन में भी नकाब करते हो, आप नकाब में आओ। जो आपकी पर्सनैलिटी है, बी रियल, जो रियल हो वो सामने आ। बिल्कुल। आपकी, मैं पीछे से मुझे एक बात याद आई, तो आपने नंबर्स की बात की थी। जी, अंजुम, आई रिमेम्बर, मैं जब ये नंबर्स देखती थी ना, जब मैं इंस्पिरेशन मैंने ली थी, मैं एक ग्रुप में ऐड हुई थी, मैं कहती थी ये रियल नंबर्स हैं, लाइक मेरे लिए भी आज वही नंबर्स मैं लगा रही हूँ। जी, बिल्कुल। तो वो मुझे इतना वो होता है कि yes, कुछ भी ये नंबर्स झूठ नहीं होते। हाँ, येस। आप इमेजिन करते हो हाउ इट्स पॉसिबल, तो ये पॉसिबल है। इट्स अ जर्नी एक्चुअली। जी, बिल्कुल, इट्स अ जर्नी, इट्स अ लाइक इट्स नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम कि आप आओगे और फटाफट से 5 फिगर करोगे, इट्स नथिंग लाइक दैट। इट्स अ जर्नी ऑफ ग्रोथ, है ना? आपका पर्सनल ग्रोथ, आपका फाइनेंशियल ग्रोथ, यू विल सी इट, you will learn it and you will go step by step and reach your goal, earn your जो भी आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, आप उसको अर्न कर लोगे। ऑलराइट फरीन, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन कि लाइक देयर आर सो मेनी स्टे होम मॉम्स लाइक लाइक अस, जो कि हिजाबी है एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द बिजनेस, लेकिन कुछ ना कुछ उनके माइंड में डाउट होता है कि क्या इसमें हमें इन्वेस्टमेंट है, क्या हमें पोस्टिंग करना है। टू ऑल दोस पीपल व्हाट वुड बी योर एडवाइस कि यू हैव टू टेक अ स्टेप टू जंप एंड लुक आउट कि क्या है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, तो उन सब के लिए जो सिटिंग ऑन द फेंस है एंड देख रहे, so what would be your words of advice to them? सो सबसे पहले हम क्लियर करते जाएं, ये बिजनेस है, ये जॉब नहीं है। डेफिनेटली बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, बट इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर सको। इट्स नॉर्मल, लाइक आपकी रेंट से भी ज्यादा नहीं होगी मेरे ख्याल से। हम नंबर्स यहाँ पे बोल नहीं सकते डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट स्टार्टिंग और मैक्सिमम मिनिमम दोनों ऑप्शंस हैं। तो डेफिनेटली जब आप ट्रायल पीरियड लेते हो तो आपको सब कुछ वहां पे पता चल जाता है। और इसमें ये है कि अब जो जो जॉब है ना, मैं सभी के पेजेस पे जाके ये एग्जांपल देती हूँ, और अभी यहाँ पे भी दूंगी कि अल्लाह ताला ने हम बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं नेचर की हमें, जिससे हमें जो है पता चलता है कि पेशेंस क्या होता है। तो बिजनेस की डेफिनेशन अगर आप नेचर से निकालें ना, तो आपको इजीली मिल जाएंगी। जैसे बच्चा है, वो अल्लाह ताला चाहते तो एक दिन में भी पैदा हो सकता था। ये दुनिया जो है, एक दिन, इस दुनिया को बनने में 6 दिन लगे, राइट? वो एक दिन में भी बन सकती थी, क्योंकि कुन फाया कुन, राइट? जी, तो अगर
इन सब चीजों, अल्लाह ताला ने ये सब चीजें इसलिए हमें बताई हैं ताकि हम उसमें से उस पेशेंस के बारे में जान सके कि पेशेंस होता क्या है। तो इस बिजनेस की भी डेफिनेशन सेम यही है, पेशेंस। आप पेशेंस रखें, कंसिस्टेंसी रखें, स्ट्रगल रखें, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप आते हैं, आप बैठ जाते हैं, आप कुछ नहीं करते और आप रिजल्ट्स मांगते हैं, तो डेफिनेटली आप लॉस में जाओगे। आप अपना भी लॉस करोगे और आप जिसके थ्रू आए हैं उसका भी लॉस करोगे। इसलिए आप जब भी इस बिजनेस में जंपिंग होने के बारे में सोचते हैं तो ये माइंड में रख के आए कि यस, इसमें इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, बट अफोर्डेबल है। बट जी उससे पहले आप एक ट्रायल पीरियड लें जो कि 100% रिफंडेबल है, विच इज 149। जी उसमें आपको जो 3 घंटे की कोर्स मिलता है या वीडियोस मिलती हैं, जो लेसन्स ले लें आप, जो भी उसको कह लें, वो आपको मिलते हैं। उससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इस बिजनेस में, क्योंकि वो मॉडल ही इतना अच्छा एक्सप्लेन हुआ है जी कि और वो मॉडल हम लोगों ने आप ही के लिए बनाया है। तो नो पॉइंट टू डिस्कस दैट मॉडल ओवर हियर। सो वो उसका एक अपना तरीका है, आप उस तरीके से जाएं और आपको वहां पे पूरी एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि ये बिजनेस किस बारे में है। सेकंड, हम जो जॉब करते हैं, अंजुम, रेगुलर जॉब जो करते हैं, जी क्या हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते? लाइक हम जा रहे हैं, हम गाड़ी खरीदते हैं, उसकी इंश्योरेंस पे करते हैं, गाड़ी की डेली गैस डालते हैं, तो हमारी जो जॉब की इनकम आ रही होती है उसमें हम अपना पूरा टाइम भी दे रहे होते हैं, तब जाके हमें कोई एक सैलरी मिलती है। बट वो सैलरी भी हमारी डिसाइडेड होती है कि वो हमने कहाँ कहाँ लगानी है। तो हमारा सेविंग का जो एक अगर हम पूरा चार्ट देखें, ग्राफ देखें, तो वो बहुत कम रहता है। तो हमें साइड हसल के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। ये सिर्फ मॉम्स के लिए नहीं है, इट इज ऑल्सो फॉर दोज जो कि जॉब रेगुलर कर रहे हैं बट साइड हसल के लिए वो कोई चीज अगर ढूंढ रहे हैं। डेफिनेटली अंजुम, अगर मुझे अभी बच्चों का प्रॉब्लम ना होता तो मैं रेगुलर जॉब भी कर रही होती, चाहे दो दिन करती, 3 दिन करती, क्योंकि वो मेरा शौक है। वो मेरा शौक है और वो मैंने आपको एक चीज बताई। तो बच्चों की वजह से इस वक्त मैं इस बिजनेस में हूँ और जी मुझे करना ही करना है, डेफिनेटली मुझे करना है। अगर मैं साइड हसल के तौर पे ना ज्वाइन करती तो शायद मैं घर बैठ के एज ए मॉम इसको जरूर ज्वाइन कर लेती। जी। वेल सेड फरीन, जो आपने कहा कि यू हैव टू कम विद द पेशेंस एंड वी हैव टू गेट इंस्पायर्ड कि जो अल्लाह ताला ने बनाया, इट्स ऑल अ लेसन फॉर अस कि है ना, आप जो भी काम करें यू हैव टू पुट पेशेंस एंड जो आपने कहा जॉब के बारे में, ऑफ कोर्स जॉब में भी कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है। अब आप देखो कि एवरी जॉब नीड्स सर्टिफिकेशन, आपको कितने सारे कोर्सेज करने के बाद यू गेट अ जॉब, कि आपने ऐसा नहीं कि आपने कॉलेज पढ़ लिया आपको जॉब मिल गया। टाइम्स हैव चेंज, ऐसा वक्त चला गया कि जब आप कॉलेज से निकलोगे एंड यू गेट अ जॉब, देयर इज नो वे, क्योंकि जो पढ़ाई कॉलेज में है वो बस वहीं तक रहेगी। जो जॉब की रिलेटेड पढ़ाई है, यू हैव टू अगेन स्पेंड, गेट द सर्टिफिकेशन एंड फिर जाकर आपको जो है कोई अच्छी वाली जॉब, यू कैन बैंग अ जॉब। तो इन्वेस्टमेंट इज देयर एवरीवेयर, पर यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस में दिस अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट, एंड वी कैन नॉट टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट हियर बिकॉज वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, एंड आपका जो फिनेंशियल एक गोल होता है उसको लेकर, आपके बजट को लेकर, we will decide that, we will talk about it once you take up the 149, which is again refundable. Absolutely amazing. और जी एक चीज ऐड करूंगी, जब आप इंटरव्यू दे, आप किसी से बात करते हो जॉब के लिए, तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, वहां आपकी सैलरी डिस्कस होती है, राइट? बिल्कुल इस बिल्कुल। प्लेटफॉर्म में हम ऑनलाइन आपसे बात करेंगे, ठीक है, पर्सनली, क्योंकि आपकी भी प्राइवेसी है, हमारी भी कुछ प्राइवेसी जी है। तो उसमें जी हम आपको ऑप्शंस देंगे, जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन होगी उसके मुताबिक आप स्टार्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हर जगह पे है कि आप लाइव कहीं पे भी, आपको कोई बॉस नहीं कहेगा आ जाओ, $20 पर घंटा है, आ जाओ। इंटरव्यू लोगे, आपका एक्सपीरियंस देखेंगे, वो बहुत सारी चीजें होंगी, तब जाके आपको जॉब मिलती है। Absolutely. Well said, Fareen. Thank you so much for all your golden words, आपके golden nuggets के लिए. And it's a reminder for us, even for me, कि ना कि business में up and downs होते रहते हैं, and we have to be patient and be consistent in the journey, ताकि हम जो भी एक गोल के साथ आए हैं उसको अचीव कर सके. Thank you so much, Fareen, for your time and your I would say advice for all of us, including me. I wish you all the best business के लिए, अपनी personal life के लिए. And to all the viewers, I hope this has been a very inspiring session. For any kind of doubts and queries, you can reach out to me, you can reach out to Fareen, and we are here to help you get started with your own online business. And until next time, I get another, member of our business community with a different background. It's Allah Hafiz. Take care and have a good day, everybody. Thank you. Allah Hafiz, everyone.